All right. Um, okay, so we were covering last time chapter number 25, that is statement of financial position, and we cover almost the whole chapter except these two three term working capital. हमने कैश फ्लो भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो प्रॉब्लम is also called working capital problem because that is the amount you require to meet your day-to-day expenses. आप किसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है working capital ये क्यों लिखा है क्योंकि करंट लायबिलिटीज आर द आइटम्स business owes and business is supposed to pay that within a year. तो इसके लिए आपको करंट आपके पास कैश भी है आपके पास ट्रेड भी है आपके पास इन्वेंटरी भी है because they can be converted into cash or they are already in the ready form of cash जैसे कि cash होता है so the business will be able to pay back these current liabilities as well if there are sufficient current assets. तो हम कहते हैं कि business has enough working capital to meet its day-to-day expenses. Otherwise, अगर current assets जो हैं वो sufficient नहीं है current liability को pay करने के लिए, तो we say that business has low working capital, और वो business will be in a very dangerous situation, a tricky situation where business might be closed down as well, even if they are earning profit, or profit is being shown on their income statement, लेकिन business close down हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो cash flow problem का issue आ जाएगा जो हमने बात की थी. The working capital is actually extremely important for day-to-day transactions of a business or to meet regular expenses. अच्छा, फिर हमारे पास capital employed आ जाता है. तो अब इसका employed का मतलब है use the total capital invested in the business, जैसे मैंने लिखा हुआ है. और उसका फॉर्मूला जो है वो अगर हम देखें तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मैंने लिखा है, या आजकल जैसे कि आपको बताया कि अब लॉन्ग टर्म नहीं वर्ड इस्तेमाल होता है तो नॉन करंट लायबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी. तो अब ये जो हमारे पास शेयर होल्डर फंड है ये हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि पेपर में दे कैन आस्क टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फॉर दैट दे विल बी गिविंग यू डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दी हुई है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, तो यू नीड टू ऐड देम टुगेदर. लेकिन समटाइम्स शेयर होल्डर फंड इज नॉट गिवन और यू हैव टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड फर्स्ट, और उसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास नजर आ रहा है वो है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. या आपको पता है शेयर कैपिटल क्या होता है? नो सर. नहीं, शेयर कैपिटल इज द कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स, यानी कि it is for limited companies, either private limited company or a public limited company, when they are able to raise capital by issuing shares either through stock exchange or by selling their shares to their family and friends, depending upon कि वो private है कि public है, वो जो capital raise होता है उसको share capital बोलते हैं, capital raised through issuing of shares. अच्छा, और reserves पता है क्या होता है? नो. No, reserves होता है कि every year business earns profit. Some portion of profit is distributed among the shareholders. That is what we call dividend. So the rest of the profit, which is not distributed, that is actually kept under reserves. Means that every year the profit which is retained by the business, that is what we call retained profit, after paying taxes and dividends, that is kept by the business. So that actually is kept under this caption, that is reserves. So reserves include retained profit of the current year and the previous years as well. So, and later it can be used for the financing the business activity as well. तो इन दोनों को आपको जमा करना होता है. तो अगर रिजर्व आपको नहीं दिए हुए तो आपको रिटेन प्रॉफिट दिया होगा, वो समझो कि वो रिजर्व में ही जाता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को जमा करेंगे तो शेयर होल्डर फंड आएगा, और फिर आप शेयर होल्डर फंड को नॉन करंट लायबिलिटी में अगर ऐड करोगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. इस तरह की कैलकुलेशन आ सकती है. अच्छा, और जो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी है वो क्या होती है, मतलब उसकी कोई एग्जांपल है देर में?
लॉन्ग टर्म लोन। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म लोन आपके बिल्कुल इसी में आ जाते हैं। वेरी गुड। उसके अलावा हमने अभी पीछे पढ़ा है डिबेंचर्स, जी वो भी इसी में आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक मिनट जरा इसको ड्रैग करके नीचे लेके जा रहा हूँ। ओके, तो ये हमें समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज कि नेट एसेट्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, बट यू गेट द सेम वैल्यू एज कैपिटल एम्प्लॉयड, और इट इज कैलकुलेटेड इस तरह कैलकुलेट हो रहा है, नेट एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो अब मैंने आपको लिख दिया नोट में कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट्स। ये क्यों लिखा है? बिकॉज़ सम टाइम दे कैन आस्क अ ट्रिकी क्वेश्चन, और वो क्या कि वो आपको कहते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैलकुलेट करें, और कैपिटल एम्प्लॉयड की आइटम नहीं दी हुई, जैसे कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हमारे पास शेयर कैपिटल भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, तो हम शेयर होल्डर फंड नहीं निकाल सकते। तो फिर हम ऑफ कोर्स कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं निकाल सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। तो नाउ द स्टूडेंट दे गेट स्टक इन सच सिचुएशंस कि सर क्या करें, वो तो आइटम्स ही नहीं दी हुई। तो फिर आपको क्या करना है, यू विल यूज द यू विल फाइंड आउट नेट एसेट्स। तो हो सकता है आपको उन्होंने, बल्कि लाजमी उन्होंने आपको फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल लाजमी दिया होगा। और अब फिक्स एसेट का जो नया नाम आ गया है वो हमने पढ़ा भी है कि वो है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो आप जब इस फॉर्मूले से नेट एसेट्स निकालेंगे, तो चूंकि नेट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर भी वही होगा। इस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं नेट एसेट्स के फॉर्मूले से। अच्छा, अब इसमें ऐसा क्यों होता है हम इसमें बात करते हैं, लेकिन पहले ये कि नॉन करंट एसेट्स तो आपको पेपर में फिर दिए होंगे डेफिनेटली, और वो कौन से होते हैं जरा बताना। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग। जी बिल्कुल सही, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग, आपकी मशीनरी हो सकती है, बिल्कुल सही। और वर्किंग कैपिटल तो हमने पहले ही फार्मूला देख लिया कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो उससे वर्किंग कैपिटल आया था, उसको हम जमा कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको मैंने बता दिया, इस तरह हो सकता है वो कहीं नेट एसेट्स निकालें, लेकिन आपको नेट एसेट्स की आइटम नहीं दी हुई, यानी कि आपको करंट एसेट नॉन करंट एसेट शो नहीं किया हुआ, वर्किंग कैपिटल शो नहीं किया हुआ, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे और उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और आप फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे कि बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स की वैल्यू भी वही आ जाएगी। इस तरह करके वो ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट पास पेपर में आया भी हुआ है। अच्छा, अब ये बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि कहते हैं कि आप वट एवर कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड यू यूज इट टू बाय एसेट्स। जो कैपिटल आपका इस्तेमाल हो रहा है, यूज, ऑफ कोर्स यू यूज दैट कैपिटल टू बाय एसेट्स, तो दैट इज व्हाई एसेट्स जो होते हैं आपके नेट एसेट्स, वो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इसको नेट क्यों बोल रहे हैं, एसेट्स क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें से आप करंट लायबिलिटीज निकाल देते हैं। और वो कैसे निकल रही है आपको नजर आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला यही होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल नहीं लिख रहा है, तो फिर आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो भी एक ही बात है, क्योंकि वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल ही निकलेगा। तो आप करंट लायबिलिटीज निकाल देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेट एसेट्स, कि वो एसेट्स जो आपके पास रहेंगे लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है, विच विल स्टे विद द बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर आफ्टर पेइंग करंट लायबिलिटीज एज वेल। तो उतना कैपिटल भी बिजनेस के पास होता है, क्योंकि वो कैपिटल ही तो इस्तेमाल करके एसेट्स को बाय करते हैं, ठीक है। यस। ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 26, और ये दैट इज द लास्ट चैप्टर एज फार एज बिजनेस अकाउंटिंग इज कंसर्न। और फिर मैं आपको इकट्ठे इसकी वर्कशीट एक दे दूंगा, इंक्लूडिंग आपको बताया था ब्रेक इवन, इंक्लूडिंग कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स एज वेल। अच्छा, अब इसको हम करने के लिए रेशियो एनालिसिस और ये चीजें हैं, तो आई नीड टू डेमोन्स्ट्रेट यू दैट। अच्छा, एक तो ये कि रेशियो एनालिसिस जो है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल, उसका रीजन क्या है और रेशियो एनालिसिस को ये रेशियो एनालिसिस बोलते क्यों हैं? अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट किया कि देयर आर टू बिजनेसेस, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, और लेट्स से एक बिजनेस है जिसको प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस ए को लेट्स से हो रहा है $10,000 और बिजनेस बी जो है उसको हो रहा है $100,000। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हिच बिजनेस इज मोर सक्सेसफुल? Business B. बिजनेस बी, ऑफ कोर्स, क्योंकि दे आर अर्निंग मोर, अ लॉट मोर प्रॉफिट देन बिजनेस ए। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपने भी काम किया है इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंगल फिगर कंपैरिजन। ये किया ना हमने, हमने एक फिगर ले ली प्रॉफिट की और उससे हमने दो बिजनेसेस को कंपेयर कर लिया टू फाइंड आउट व्हिच बिजनेस इज रादर इज मोर सक्सेसफुल। अच्छा, अब नाउ आई एम एडिंग वन मोर आइटम हियर, और वो है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ $20,000, और यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ $500,000। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जरा गौर करो, बिजनेस ए वाज एबल टू earn profit equal to $10,000 out of $20,000 रेवेन्यू, यानी कि $20,000 रेवेन्यू में से उन्होंने $10,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। व्हेन दे एक्चुअली मेड सेल्स equal to $20,000, the business was able to generate $10,000 profit, right? और ये बनता है ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूं तो ये बनता है जी 50% ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि 50% ऑफ द रेवेन्यू was converted into profit, या 50% ऑफ द रेवेन्यू, जो $10,000 प्रॉफिट है वो दैट वाज जनरेटेड आउट ऑफ रेवेन्यू एंड दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ द रेवेन्यू। अच्छा, और अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊं तो यहाँ पर ये बनता है कितना जी, 20%, यानी कि बिजनेस जो है वो इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट दैट इज $100,000, बट दैट इज 20% ऑफ द रेवेन्यू अर्न बाय द बिजनेस, दैट इज बिजनेस बी। इज इट द केस? सही है। Yes. अब क्या लग रहा है, विच बिजनेस इज मोर सक्सेसफुल और इन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, अगर मैं बात करता हूँ टू जनरेट प्रॉफिट, तो कौन सा बिजनेस लग रहा है? Business A. बिजनेस ए। इसका मतलब है सिंगल फिगर कंपैरिजन जो है ना, एक्चुअली दिस इज ट्रू। तो सिंगल फिगर कंपैरिजन जो है ना, इट समटाइम्स मिसलीड पीपल एज वेल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, इट मिसलीड्स। तो अब यहाँ पर आप गौर करो कि उनका रेवेन्यू अभी $20,000 है एज फार एज बिजनेस ए इज कंसर्न। तो जब बाय द टाइम बिजनेस ए पहुंचेगा $500,000 के रेवेन्यू पे, तो उस वक्त बिजनेस ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो ना, बिजनेस ए की एबिलिटी है कि दे आर एबल टू जनरेट प्रॉफिट इक्वल टू 50% ऑफ द रेवेन्यू। तो जब वो बिजनेस बी के बराबर पहुंचेंगे सेल्स बढ़ाकर और $500,000 पे चली जाएगी, रेवेन्यू चला जाएगा, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? ऑफ कोर्स उनकी एबिलिटी है 50% ऑफ द रेवेन्यू दे जनरेट प्रॉफिट। तो $500,000 का जो बनता है 50%, वो बनेगा 250,000। ऐसे ही है ना, Yes. जो कि बिजनेस बी के $100,000 प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है। ऐसे ही है। Yes. इसका मतलब है मेयर look at the profit of the business is not sufficient to judge whether business is successful or not.
you need to see their ability. This is the ability to generate profit out of revenue. So the greater the percentage, the greater will be the ability of the business, and that business will be considered more successful because जब वो उस लेवल वो अभी हो सकता है बिजनेस स्टार्ट हुआ है और जब उस लेवल तक पहुंचेंगे तो दे विल बी अर्निंग अ लॉट मोर प्रॉफिट. हाँ, अगर दोनों का रेवेन्यू सेम होता तो फिर हमें नजर आ जाता कि जी बिजनेस ए जो है वो $250,000 का प्रॉफिट कमा रही होती कंसिडरिंग देयर 50% एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, और बिजनेस बी जो है वो सिर्फ $100,000 का प्रॉफिट कमा रही है और उस वक्त भी कमा रही होती क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है वो सिर्फ 20% है. समझ आ रही है? Yes. अच्छा, तो हमने क्या किया कि हमने वी एक्चुअली वाइल कैलकुलेटिंग विच बिजनेस इज मोर सक्सेसफुल, हमने दो फिगर्स ली हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. इसी तरह बिजनेस बी में भी हमने रेवेन्यू लिया और हमने प्रॉफिट लिया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेशियो एनालिसिस, वेयर रादर देन टेकिंग सिंगल फिगर ऑफ टू डिफरेंट बिजनेसेस एंड making a comparison, you take two figures of each business. They can be taken either from the income statement, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, रेवेन्यू भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, प्रॉफिट भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, और दे कैन बी टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल. और मैं अगर इसको अब जरा रेशो की, इसलिए रेशो एनालिसिस इज फार बेटर मेजर टू evaluate the success of the business or the ability of the business to become successful. तो यहाँ ability business A की ज्यादा है, जो कि बज़ाहिर लग रहा था business B जो है वो ज्यादा बेहतर है. अच्छा, इस केस में अब अगर मैं ये करूं कि अब इसमें अगर हम देखें रेशियो एनालिसिस को मैं बीच में लेकर आऊं, तो हमारे पास जो पहली रेशियो एनालिसिस मतलब यू नीड टू कंपेयर एटलीस्ट टू फिगर्स, बताया भी आपको, ईदर टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट और फ्रॉम द बैलेंस शीट. तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको जरा एक रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो एक रेशियो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. अच्छा, ये एक रेशियो है क्योंकि इसमें दो आइटम्स को कंपेयर किया जाएगा. तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. और आगे मैं लिख देता हूँ इनटू 100. तो लेट्स एज्यूम कि जो प्रॉफिट हमने निकाला है, लेट्स एज्यूम जो प्रॉफिट निकाला है ये ग्रॉस प्रॉफिट है. तो हम क्या करेंगे, हम ऑफ कोर्स यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हम बिजनेस ए की बात करूं तो वो आ रहा है 10,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो रेवेन्यू है वो आ रहा है 20,000 और इनटू 100 आपने कर दिया, तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा जो मैंने बताया है, 50%. ठीक है जी, ये है बिजनेस ए के लिए. तो इसी तरह से हम बिजनेस बी का भी निकाल सकते हैं, और बिजनेस बी का जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा इसी फॉर्मूला को यूज करके 20%. समझ आ रही है? Yes. So that is why we actually use ratio analysis to find out which business is more successful, yeah, which business has greater ability to become successful. तो अब हम और भी रेशियोज पढ़ लेते हैं जल्दी से ताकि आपको पता चल जाए. मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी है रेशियो एनालिसिस की. तो कमिंग बैक टू द नोट्स, अब यहाँ देखिए तो अब हमारे पास, अच्छा ये मैंने आपको अभी बताया है रेशियोज, रेशियो एनालिसिस क्या होता है. और लेकिन ये जो मैंने आपको अभी रेशियो निकाल के दिखाई है ये बता रही है बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में. और परफॉर्मेंस हमेशा किस चीज की बेस पर बताई जाती है या वैल्यूएट की जाती है, वो होता है प्रॉफिट. तो जब भी मैं रेशियोज दो तरह की हैं ओ लेवल के सिलेबस में, एक है परफॉर्मेंस रेशियोज और वो बताती हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, और परफॉर्मेंस जो है वो निकलती है आफ्टर लुकिंग एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ये जो वर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट सेम एज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एक एब्सोल्यूट फिगर होती है.
मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है इट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, जैसे अभी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है, वहां पे 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है अबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये प्रॉफिट नहीं होता ना, प्रॉफिटेबिलिटी में तो वही आप टू फिगर कंपैरिजन करते हैं, रेशियो एनालिसिस है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर निकालनी है ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक हो, तो हम जो रेशियोज पढ़ेंगे उसमें प्रॉफिट का होना जरूरी है। तो हमारे पास परफॉर्मेंस हमेशा प्रॉफिट से निकाली जाती है, ठीक है। और सॉरी, परफॉर्मेंस देखने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास दो आइटम में से एक आइटम जो है वो प्रॉफिट का होना जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस रेशियो हमारे पास तीन तरह की हैं एज फार एज ओ लेवल सिलेबस इज कंसर्न। तो पहले हमारे पास आ जाता है जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या बताती है? ये बताती है बिजनेस की एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ सेल्स। जो अभी हमने बात भी की है कि बिजनेस अपनी सेल्स में से, या मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं तो अब ये वर्ड इस्तेमाल होता है, रेवेन्यू में से कितने परसेंट प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है। तो अगर जितने ये जीपी मार्जिन ज्यादा होगा, आंसर जितना बड़ा आएगा, उतना ही बिजनेस की एबिलिटी ज्यादा है टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ रेवेन्यू। तो बिजनेस इज जनरेटिंग आउट ऑफ गिवन सेल्स या रेवेन्यू जो भी है, ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, द हायर द रेशियो द बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, जो मैंने आपको बता दिया तरीका और कैलकुलेट करके दिखाया दिया आपको। इसी तरह अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को, आजकल अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, आजकल सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन का वर्ड ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी क्या कर रहा है, इट, अब इसमें भी प्रॉफिट आएगा ऑफ कोर्स। इट टेल्स हाउ मच नेट प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट, ठीक है, फॉर द ईयर, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि यही वर्ड इस्तेमाल है। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है जो मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स? ये ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब है आपके पास जो भी आंसर आएगा, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखी है दो बिजनेस ए और बी की, तो बिजनेस ए का आंसर आ रहा था 50%। तो 50% किसका, यानी कि बिजनेस की का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 50%। तो 50% किसका बताओ? रेवेन्यू। रेवेन्यू का। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि ये परसेंटेज की शक्ल में होता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है सेल्स की परसेंटेज में। तो अब उसमें भी ये रेशो जितनी ज्यादा है, इसका मतलब है बिजनेस उतना ही ज्यादा जो परसेंटेज है रेवेन्यू की, उसको उससे प्रॉफिट जनरेट करता है, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है आउट ऑफ रेवेन्यू। जितनी रेशो ज्यादा होती जाएगी उतना ही बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। और फॉर्मूला वही है, सिर्फ ये हुआ है कि अब आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसकी जगह पे आपने प्रॉफिट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, दैट इज इट। तो ये भी समझ आती है। पेपर में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो फाइन, नहीं दिया हुआ तो यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपको पता है रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट दिया हुआ है तो फाइन, नहीं दिया हुआ तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एज वेल। जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर आपको उसकी आइटम जरूर दी होगी कि आप जो है वो यहाँ से निकाल लें, यानी कि ये रेवेन्यू, ये अकाउंटिंग नहीं है ना, बिजनेस है, तो आपको बहुत मुश्किल आइटम नहीं देंगे, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड वगैरह वगैरह, सिंपल रखेंगे। आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, तो आप उसमें उसको यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, एंड देन यू विल बी यूजिंग इट इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी या जो रेशियो है। और इसी तरह अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो फिर आप यहाँ से निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर भी मैं नेट प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट फॉर द ईयर इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, और या तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि इस पेपर में सवाल आता है कि नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जब आप सारी कॉस्ट माइनस कर देते हैं रेवेन्यू में, और ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं रेवेन्यू से। अच्छा जी, अब तो आगे चलते हैं हम रेशियोज पे। तो फिर हमारे पास ये जीपी और प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास आ गया है। अच्छा, अभी हम आगे भी देख लेते हैं। अगली रेशो हमारे पास आगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ही है।
और इसको हम ROCE भी बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। ये नाम क्यों बना, आप बता सकती हो? ये मैं एक मिनट यहाँ पर ROC अभी जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ स्लैश नेट एसेट, यानी कि इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन नेट एसेट भी बोला जाता है। क्यों ऐसे बोला पता है? मैंने बताया यस सर। सर आपने बताया था कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसी से हम एसेट्स खरीदते हैं। जी, तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जब फॉर्मूला देखेंगे और आपके पास अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है और या आपके पास वो आइटम नहीं दी हुई, तो आप नेट एसेट्स की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। यानी कि मैं अभी फॉर्मूले की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले हम जरा रेशो को समझ लें कि ये रेशो क्या बताती है। इट शोज हाउ मच प्रॉफिट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द कैपिटल। अच्छा, ऊपर वाली दोनों रेशो में क्या था कि उसमें हम देखते थे कि बिजनेस की एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है, बट दैट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स या रेवेन्यू। यहाँ पे जो प्रॉफिट है, एक बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द कैपिटल। बस ये फर्क है कि आप बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, जो यूज कर रही है, उसमें से कितनी परसेंटेज उसकी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है, या उससे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो सिंपल वर्ड में इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। अगर आप कैपिटल को वेस्ट नहीं कर रहे और सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अच्छा यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे आप कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, और उससे आप कम कैपिटल भी लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिससे ये वाली रेशो ज्यादा नजर आएगी। और अगर ये रेशो कम नजर आ रही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के, इसका मतलब है आप अपने कैपिटल का अच्छा यूज नहीं कर रहे, वो वेस्ट कर रहे हैं, या इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अ वे वेयर प्रॉफिट कैन बी जनरेटेड या मोर प्रॉफिट कैन बी जनरेटेड। तो वो आपको देखना है, या कैपिटल कैन नॉट बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा, इसमें भी है, अगर रेशो जितनी ज्यादा बड़ी आ रही है, ज्यादा आ रही है, उतना ही बिजनेस की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि बिजनेस उतना ही ज्यादा अपने कैपिटल को से प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। तो अब उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ROCE ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब इसमें एट टाइम्स आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया होता, मैंने वैसे लिख दिया है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस्तेमाल करें, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, जो कि अक्सर पेपर में होता है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। और वो ये है कि आप इसमें खाली प्रॉफिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ और खाली प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, तो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नो इशू। और नीचे आप कैपिटल एम्प्लॉयड इस्तेमाल करेंगे और इनटू 100 कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बतानी है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ मैं नोट लिख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द रेशो as the answer would be the same। जो कि हमने ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले चैप्टर में बात कर ली हुई है, लेकिन मैंने फिर भी ये एक नोट यहाँ पर लिख दिया है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड। ये मैंने लिखा है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन केस कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन, ठीक है, इवन द आइटम्स दैट मेक अप कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ना जिन आइटम से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है वो भी नहीं दिया हुआ। यहाँ में एक मिनट, कैपिटल एम्प्लॉयड even the item that make up capital employed is not given,
then instead of capital employed, the value of net asset can also be used to find the ratio. जी, ये क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. ऑल राइट, तुमने 3 रेशियोज देख ली हैं। अच्छा, मैंने लिखा आगे नोट में, ये भी एक और नोट है कि इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट गिवन और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देन नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मैंने ऊपर भी बता दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैन आल्सो बी टेकन। तो ये 2 नोट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अच्छा, अब ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देख ली है। अच्छा, मुझे आपको यहाँ पे वापस लेके जाता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, कि हमारे पास हमने ये देख लिया है कि हमारे पास 3 तरह की रेशियोज मौजूद हैं। ठीक है, जीपी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं अब यहाँ बात कर रहा हूँ, क्या आपके पास जीपी मार्जिन है, ठीक है, और आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है, ठीक है, ये दोनों मौजूद हैं, और इसमें आपके पास ईयर 1 दिया हुआ है। बल्कि अभी ईयर 1 नहीं करते, पहले ये बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ जीपी मार्जिन 30% है। ये अच्छा है क्या बुरा है? नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है। ये अच्छा है क्या बुरा है? बुरा। बुरा क्यों? ऐसा क्योंकि बहुत कम है। कैसे पता कम है? मैं आपको कहता हूँ, सुनो जरा, मैं कहता हूँ आपकी हाइट बड़ी छोटी है, ये पता नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। मैं कहता हूँ आपकी हाइट बड़ी छोटी है, कैसे कहता हूँ? बताओ कैसे कहूंगा? सर मेजर करके। बेटा मेजर करके नहीं, आई नीड टू मेक अ कंपैरिजन। आई विल मेक अ कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मैं कहूंगा आपकी हाइट छोटी है दूसरों से। अनलेस एंड अनटिल यू मेक ए कंपैरिजन, आप कभी भी किसी भी चीज को छोटा बड़ा, लार्ज स्मॉल नहीं बोल सकते। ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, नहीं बोल सकते। इसका मतलब है जब तक आपको ये ना पता हो कि पिछले साल कितनी वैल्यू थी, इस साल कितनी वैल्यू है, आप नहीं बता सकते कि ये वैल्यू जो है वो अच्छी है या बुरी है। लेट्स से कि पिछले साल वैल्यू 20% थी, अब 30% हो गई, तो ये तो अच्छी है। अगर पिछले साल वैल्यू 40% थी, अब 30 हो गई, अब बुरी हो गई। वैल्यू वही है, परसेंटेज वही है, लेकिन कंपैरिजन डिफरेंट हो गए कि पहले 20% थी, अब 30 पे चली गई तो बढ़ गई, अच्छी हो गई। पहले 40 थी, 30 पे आ गई, कम हो गई, बुरी हो गई। इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी ऐसे ही है। तो आप कभी भी, ये पेपर में सवाल आ सकता है कि बताएं ये अच्छी है कि बुरी, तो आपको बताना पड़ेगा कि अनलेस एंड अनटिल वी गेट द डेटा और द सेम फिगर ऑफ अदर years, we cannot say whether this is a good ratio or bad. समझ आ गई? यस। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हमने ईयर 1 लिया, तो ईयर 1 में 30% है और 10% हमें नजर आ रहा है, तो मैं इसके बाद यहाँ पे ईयर 2 ले लेता हूँ, और वहां पे मैं ये कहता हूँ कि 35% हो गई, और ये हो गया लेट्स से 8%। अब ये जो है, मैंने ईयर 2 की फिगर्स भी बता दी, तो अब बजाहिर जीपी मार्जिन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। अच्छा है, क्यों? अच्छा क्यों है? सर 5% इंक्रीज हुआ है। 5% इंक्रीज हो गया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने कहा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, या प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हैं आप उसको? नहीं सर, क्योंकि 2% डिक्रीज हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल सही हो गया। अब अगर हमने इन दोनों रेशियोज की बेस पे कोई कमेंट करना हो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो क्या करेंगे? अच्छी के बुरी? फंस गए ना यस सर। कि भाई एक रेशियो अच्छी एक बुरी, तो हमने अगर ओवरऑल कमेंट देना है तो बड़ा मुश्किल हो गया। उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि जीपी मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है। जीपी मार्जिन, ऑफ कोर्स उसके लिए जीपी चाहिए होता है, तो और जीपी निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने से। अगर आपका जीपी मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस वाज एबल टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम की है, तो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स में गैप बढ़ गया है, और गैप बढ़ने से आपका मार्जिन भी
इंप्रूव कर गया, ऐसे ही है ना। Yes. और अगर ये रेशियो बुरी होती जीपी मार्जिन की 30 से 20 पे आई थी, तो हम कहते हैं बिजनेस वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, या बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई है, जिसकी वजह से गैप रेवेन्यू और कॉस्ट में कम हो गया है और मार्जिन आपका जो है वो डिटेरियोरेट कर गया है। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी ही है, कम हुई है कि नहीं हुई है, डेटा में, डेटा आपको दिया होगा। लेकिन जनरली आप ये कमेंट कर सकते हो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी हुई। लेकिन अगर लेट से मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू जो है वो उतना, रेवेन्यू कम हो गया लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी ही है, जीपी मार्जिन बढ़ेगा कम होगा? Sir, कम होगा। तो यहाँ पर हम फिर ये नहीं कह सकते कि बिजनेस वाज नॉट एबल टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स तो उतनी है, कि आप बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई ये भी नहीं कह सकते। हम कहेंगे बिजनेस अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सका। मतलब अगर रेवेन्यू कम हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होनी चाहिए थी असूलन, लेकिन वो नहीं हुई। तो अगर हम कह भी दें कि बिजनेस वाज नॉट एबल टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम होना चाहिए, तो जो नहीं हुई। समझ आ रही बात की? yes, sir. तो अगर तो मैंने जीपी मार्जिन की पहले इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूँ। अगर जीपी मार्जिन इंप्रूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि बिजनेस वाज एबल टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब अगर तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको नजर आ रहा है कि ईयर 1 में कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा थी, ईयर 2 में कम हो गई, तो ये हमारा कमेंट ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों सालों में एक जितनी है, अगर डेटा दिया हुआ है, लेकिन आपका रेवेन्यू कम हो गया पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल, तो आपका ऑफ कोर्स जीपी मार्जिन तो डिटेरियोरेट होगा, कम होगा। लेकिन फिर हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि बिजनेस वाज एबल टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कम हुई नहीं। हम फिर क्या कहेंगे? बिजनेस वाज Not able नॉट to control its cost of कंट्रोल, sales. हाँ वहाँ कंट्रोल का वर्ड लगा दें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हम बता सकें कि भाई सेल्स जो है ना, अब आपका इसलिए वो डिटेरियोरेट कर गया है क्योंकि हम, अच्छा, और अगर अगर बढ़ गया है, तो हम क्या, हमने कहा कि बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो गई। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है, कम नहीं हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स, उतनी ही है। रिवर्स बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम नहीं हुई। मैं चले आपको एक एग्जांपल से ही समझा दूं तो ज्यादा बेहतर है। मैं चाह रहा था कि ना देनी पड़े, लेकिन चलो। रेवेन्यू आपका 10 है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो है 8। अगले साल क्या हुआ कि आपका रेवेन्यू जो है ना वो 9 हो गया रेवेन्यू, तो कॉस्ट आपकी 8 ही रह गई, तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपका मार्जिन भी कम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो जीपी मार्जिन डिटेरियोरेट कर गया है, बुरा हो गया है, डाउन हो गया है, क्योंकि बिजनेस वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट, या बिजनेस वाज नॉट एबल टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट। कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई, या कंट्रोल नहीं की, यहाँ तो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि बिजनेस का रेवेन्यू जो है, अब मैं बता रहा हूँ कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया 12, कॉस्ट वही है, यहाँ क्या हुआ? प्रॉफिट तो बढ़ गया। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस वाज एबल टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि कॉस्ट तो कम हुई नहीं। हम यहाँ कहेंगे बिजनेस वाज एबल टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट ऑफ सेल, कि कॉस्ट, रेवेन्यू बढ़ा है तो कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ी क्योंकि बिजनेस ने कंट्रोल कर ली, जिसकी वजह से जीपी मार्जिन इंप्रूव कर गया। समझ आ रही है ना? Yes. वरना आम हालात में ये हो सकता है कि बिजनेस का रेवेन्यू अगर चला गया है क्या कहते हैं 10 पे, कॉस्ट 8 पे चली गई है, तो कॉस्ट यहाँ पर भी बढ़ गई, 10 हो गई, तो इस केस में तो आपका प्रॉफिट मार्जिन वही का वही रहा है ना। तो यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं